Chairman NIRC, Pradeep Devnath, Vice Chairman NIRC, CS Monica Jagia, CS Tasneem Sharif, CS Saroj Hirawat, to please come on the dais. It's an honor to get the presence of so much eminent speakers for the day, and they all are CS, to give us the importance of our profession. And the CS, this time we do not have a chief guest, and every one of you is a chief guest here. CS Dr. Shyam Agarwal, President ICSI, CS Dinesh Arora, Secretary ICSI, CS Dhananjay Shukla ji, Chairman NIRC, CS Saroj Hirawat, CS Monica Jagia, CS Tasneem Sharif, speakers to share their success stories, CS Pradeep Devnath. I welcome you all on the dais. CS Deepak Kukreja, past chairman, senior members of our profession. I welcome all of you to this program. I welcome all the members who are part of the live telecast on this program. Ladies and gentlemen, wish you a very International Women's Day. It's my privilege to be here to stand in front of you and to speak on the occasion of International Women's Day. I would like to thank our President ICSI and Chairman NIRC for taking initiative to organize joint program on the Women's Day. Thank you so much. I would like to thank all the women being successful in any area, be it our profession, banking, politics, teaching, administrative jobs, and so on. And of course, as homemaker. The success of any women is incomplete until and unless we recognize their contribution towards their family. I thank to the Institute, especially our President Shyam Agarwal, for taking this innovative idea of recognizing our own female members who have excelled in their professional journey and reached to the heights. We welcome CS Saroj Hirawat, CS Tasneem Sharif, and CS Monica Jagia to this program. And I request Chairman to please present a flower bouquet to CS Saroj Hirawat, ma'am. I request CS Pradeep Devnath, Vice Chairman, to present flower bouquet to CS Tasneem Sharif. I request CS Deepak Kukreja to please present a flower bouquet to CS Monica Jagia. I am pleased to welcome you all on behalf of ICSI and NIRC to this program. Dear friends, every year on 8th day of March, we celebrate the success of women in different fields. The main focus of this program is to encourage and appreciate women. The day also aims to initiate more effective actions to safeguard the rights of women in the society. The day was originally called as International Working Women's Day. It began as a socialist political event and eventually blended into the cultures of different countries. In some places, it simply became an occasion for people to express their respect and admiration for women.
This day celebration plays a great role in spreading the real message about the women's right and their place in the society. It promotes the living conditions of women by addressing to their social issues. To empower a woman is to empower a nation. Women contribute to the welfare and well-being of every family, society, and economy. We have so many examples of empowered women. Indira Gandhi, Mother Teresa, Sushma Swaraj, Vasundhara Raje, Arundhati Bhattacharya, Zareen Daruwala, Vinita Bali, Kiran Bedi, and so on. And the list is endless. But still we need to do so much work for the women to empower them. Every year we celebrate this day, to know the success stories of the women who are already empowered and to empower the younger generation. Ms. Preeti Malhotra, our first female president, and Ms. Mamta Binani, immediate past president, are also examples of such empowered women. As you all aware that Section 149(3) of the Companies Act opens new way for the women by becoming women director in certain class of companies. As per the data available by www.indiaboards.com, there are 1,469 women who have become director in 1,992 NSE listed companies. And out of that, 787 women are independent directors. The educated and professional women in today's era are also carrying the responsibility of their contribution towards building the nation. In modern Indian society, women are playing stellar roles in politics, in family building, society development. Indian women is emerging out of their conventional role, realizing their unlimited potential, and have begun to take major role in all walks of life. I am happy to inform you that ISRO's 104 satellites, which was launched in one go on February 15, 2017, has great contribution of women scientists and also known as Rocket Women of India. The famous quotation is, "For every successful man, there is a woman behind." But the time has gone when only men were supported by women to achieve their goals, and now it is the time for men to support the women to be successful, and that is why this new quote, "Behind every successful woman, there is a man," is also valid. Let us stand in solidarity with women in every corner of the world who are working for positive change in their families, their communities, and their countries. The theme for International Women's Day in UN is "Be Bold for Change," for more gender-inclusive world. So they also focus on gender neutralization, and therefore the apt theme for today's program is CS Women, Empowered and Empowering. With this note, I once again wish you Happy Women's Day, and President को बुके दिलवा दीजिए. Okay. I invite Chairman to please present a bouquet to President CS Dr. Shyam Agarwal ji. Now I request our Chairman, Dr. Dhananjay Shukla, to give his welcome address. Thank you. करना पड़ेगा. Good morning. Good morning. Thanks for responding back. Thanks, Monica Madam, for beautiful introduction of the program. And incidentally, I'm not a doctor. श्याम जी के साथ ये टैग जुड़ा हुआ है. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के यशस्वी प्रेसिडेंट CS डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी.
हमारे रीजनल काउंसिल के कुलीग वाइस चेयरमैन श्री प्रदीप देवनाथ जी, इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी श्री दिनेश चंद्र अरोड़ा जी, CS श्री दिनेश चंद्र अरोड़ा जी, आपके पास भी डॉक्टरेट की डिग्री है। आप भी डॉक्टर नहीं हैं? अच्छा। हमारे बीच अतिथि के रूप में आए हुए जिनकी सक्सेस स्टोरी हम आप सबको सुनाने वाले हैं, CS सरोज हिरावत जी, CS तनसीम शरीफ जी, CS मोनिका जगिया जी, जिनकी हम वीडियो आपको दिखाने वाले हैं इन एब्सेंसिया, CS जरीन दारूवाला जी, CS शिल्पा धालुपकर जी, हमारे NIRC के पास चेयरमैन CS दीपक कुकरेजा जी, हमारी NIRC की RD मैडम अलका अरोड़ा, सीनियर मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन, लेडीज एंड जेंटलमैन, on behalf of NIRC of the ICSI, I sincerely and warmly welcome the dignitaries on the dais and each one of you. मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है आप सबका स्वागत करते हुए, और मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। कृपया जोरदार तालियों से डिग्निटरीज का स्वागत भी करें, अभिनंदन भी करें और हमारी शुभकामना भी स्वीकार करें। मित्रों, कुछ दिनों पहले जब श्याम जी ने हमारे से चर्चा करी, लगभग 1.5 महीने पहले की बात है, कि वीमेंस डे पे हमारे को एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम करना है, तो मुझे लगा कि इन्होंने मेरे मन की बात छीन ली। और सौभाग्य की बात यह है कि हमारी काउंसिल में एक बहुत ही सशक्त महिला हैं, मोनिका कोहली जी, और इनको हमने महिला सशक्तिकरण का काम भी सौंप रखा है। वो वीमेन एम्पावरमेंट कमेटी की जो है चेयरपर्सन है, तो मैंने उनसे जो है चर्चा करी, तो हमने ये तय किया कि इस बार कुछ खास करेंगे। और श्याम जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद इस बात के लिए कि हम जिस तरीके से चाहते थे उस तरीके से आपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करवाया। आपका हार्दिक आभार, अभिनंदन। तो जो थीम हमारे सामने निकल के आया, वो थीम था CS वीमेन एम्पावर्ड एंड एम्पावरिंग। बड़ा एप्ट थीम है। अगर इसकी गहराई में जाएं तो हम ऑलरेडी सशक्त हैं, एम्पावर्ड, और सशक्तिकरण की तरफ फर्दर बढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा कई बार विरोधाभास भी नज़र आता है कि ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं तो फिर एम्पावरिंग की बात क्यों हो रही है। एम्पावर्ड खुद हैं और एम्पावर दूसरों को करेंगे, है ना? ऐसा है ना? आपकी जोरदार आवाज़ आनी चाहिए। यस, हम तो सशक्त हो गए, जिनकी सशक्तिकरण की कहानी आज हम सुनाने वाले हैं, लेकिन हम उन लोगों का भी सशक्तिकरण करेंगे जो सशक्तिकरण की राह में है। तो एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सशक्तिकरण का जो है बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आपको इस लायक बनाना, सक्षम बनाना कि आप अपने फैसले खुद ले सकें। आप जो है जिन क्षेत्र को भी आपने चुना हुआ है, जिन क्षेत्रों में भी आप काम कर रहे हैं, उनमें काम करते हुए, अपने फैसले लेते हुए आप सर्वोच्च पद तक पहुँचें। इसका मतलब सशक्तिकरण का मतलब यही है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये प्रोग्राम है बड़ा सार्थक होने वाला है, बड़ी सार्थक चर्चाएं इसमें होने वाली हैं। हमने जब प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग करी तो उसमें हमने डिफरेंट सेगमेंट को जो है इंसर्ट किया, और उसमें ये था कि सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि जो हमारी CS वीमेन हैं वो कॉरपोरेट लीडरशिप में कैसे इवॉल्व हुई हैं। उसके बाद हमने ये तय किया, उस पर मैडम प्रीति मल्होत्रा बोलने वाली थी, कुछ व्यावसायिक कारणों से और उनके अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट से आज नहीं आ पा रही हैं। उनकी जगह शाजिया इल्मी जी आएंगी, वो भी प्रखर वक्ता हैं और हमारे को वो इस बात पे जो है एकदम सेंसिटाइज करेंगी कि जो है लीडरशिप रोल में जो है वीमेन की क्या जो है जर्नी रही है। दूसरा जो हमारा सेगमेंट है वो है CS डिफरेंट शेड्स ऑफ प्रोफेशनल जर्नी। उस पर मैडम विजया संपत आएंगी। उनका एक अपना जो है ऑरा है, और पहले वो भारतीय ग्रुप की जो है ग्रुप CS थी, अब वो लक्ष्मी कुमारन श्रीधरन में पार्टनर हैं। तो हमने सोचा कि उनसे बेहतर कौन वक्ता हो सकता है। फिर हमने सोचा कि आजकल जो है एक सेक्सुअल हैरासमेंट का जो है बहुत बजवर्ड है, तो हमने कहा कि आप सबको जो है सेंसिटाइज करने के लिए हम जो है मनोज कपूर जी को बुलाएंगे, तो वो जो है सेक्सुअल हैरासमेंट वाले एस्पेक्ट में बोलेंगे। फिर श्याम जी से चर्चा हो रही थी, तो श्याम जी ने कहा कि हमारे को पावर्स एंड जो है पावर्स एंड ड्यूटीज़ पे स्पेसिफिक जो है फोकस करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए विपुल श्रीवास्तव जी आएंगे। और लास्ट में हम जब आप काम करती हैं तो आपको जो है बहुत सारे जो है परेशानियों से गुजरना पड़ता है। घर को भी संभालना है, परिवार को भी संभालना है, ऑफिस को भी संभालना है। तो उसके लिए हमने जो है वर्क लाइफ बैलेंस पे डॉक्टर रूप सिंह को बुलाया है। डॉक्टर रूप सिंह जो है ब्रह्मा कुमारीज में बहुत बड़े
मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, तो आपको इन मुद्दों पे गाइड करेंगे। तो प्रोग्राम की स्ट्रक्चरिंग मोटा मोटी ये है, और शुरू में हम जो है सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, ठीक है, तो हम सभी उससे प्रेरित होने वाले हैं। अब मैं थोड़ा सा सशक्तिकरण पे दूसरी बार आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि सशक्तिकरण कोई नया शब्द नहीं है, प्राचीन काल से चला आ रहा। अगर आप देखें तो हम जब देवी देवताओं के नाम लेते हैं तो पार्वती शंकर, सीताराम, राधा कृष्ण, राधा सीता पार्वती पहले आती है। ये सशक्तिकरण पहले भी था ये सशक्तिकरण। समाज ने महिलाओं को आगे किया और महिलाओं ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। अब अगर हम जो है आज़ादी की लड़ाई की बात करें तो 1857 का जो है आज़ादी का पहला युद्ध, बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन सब ने अपने अपने रजवाड़ों में ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया। और इससे बड़ा सशक्तिकरण क्या उदाहरण हो सकता है। मैं जरा मिडाइवल जो है काल में आता हूँ तो आप देखिए कि रजिया सुल्तान दिल्ली की जो है गद्दी पर इतना बढ़िया और सार्थक तरीके से पारदर्शी शासन उन्होंने चलाया मुगल काल में। इससे नायाब नमूना क्या हो सकता है सशक्तिकरण का। आगे बढ़ते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोनिका कोहली जी ने इंदिरा गांधी का नाम लिया। उनके बारे में कहा जाता था कि ओनली मैन इन हर कैबिनेट, ये उनका प्रभाव था। देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने की बात हो, राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की बात हो, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात हो, मैडम इंदिरा गांधी का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम सबसे आगे आता है। वह था सशक्तिकरण। वर्तमान की बात करते हैं, ममता दीदी बंगाल में, जयललिता जी, स्वर्गीय जयललिता जी तमिलनाडु में, बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में, वसुंधरा राजे जी राजस्थान में, लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा ताई महाजन, हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी। इतिहास और वर्तमान उदाहरणों से पटा पड़ा है। इन सब लोगों ने समय समय पर अपनी शक्तियों को पहचाना, अपनी ऊर्जा को पहचाना, अपनी फैमिली के साथ एक जो है वर्क लाइफ का बैलेंस बनाया और बिल्कुल झंडे गाड़ दिए अपने नेतृत्व के। तो इन सबके लिए, आप सबके लिए एक जोरदार तालियां। अगर मैं कॉरपोरेट लीडरशिप की बात करूं, जो आज का हमारा थीम भी है, तो मैडम प्रीति मल्होत्रा 2007 में हमारी प्रेसिडेंट थी, स्पाइस ग्रुप की जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और बड़े अदब और सम्मान के साथ एक बहुत जो है थॉरो प्रोफेशनल के रूप में उनका नाम लिया जाता है कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन में। इससे बड़ा नया उदाहरण क्या होगा। अब थोड़ा सा दूसरे कॉरपोरेट की मैं बात करूं तो चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की सीएमडी एंड सीईओ, शिखा शर्मा एक्सिस बैंक की, अरुंधति भट्टाचार्य, मोनिका जी ने भी उनका नाम लिया। ये सारे लोग, इन सब लोगों ने अपने अपने नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया है। मैं समझता हूं कि ये सारे उदाहरण आप सबको प्रेरित करते रहेंगे, और आप सब में से भी कोई शिखा शर्मा, कोई अरुंधति भट्टाचार्य, कोई प्रीति मल्होत्रा, कोई चंदा कोचर निकलने वाला है। ऐसा है ना? थोड़ा जोर से आवाज आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर रिस्पॉन्डिंग बैक। अब मैं जरा अपने सीएस इंस्टीट्यूट की भी कुछ बात करना चाहूँगा प्रेसिडेंट साहब की परमिशन से, कि अभी इन्होंने हमारे को एक फैक्टशीट भेजी है। अभी आपने एक हमारे को फैक्टशीट भेजी। उस फैक्टशीट में मैंने देखा कि 42,265 टोटल हमारे मेंबर्स हैं अक्रॉस इंडिया। इसमें से 17,908 17908 हमारी फीमेल मेंबर्स हैं। लगभग 42.37% का ये आंकड़ा बनता है। तो क्या इस आंकड़े के हिसाब से हमारा रिप्रेजेंटेशन भी है क्या? जब हमारे सेंट्रल काउंसिल और नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल या बाकी जो है रीजनल काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं, चैप्टर्स के इलेक्शंस होते हैं, तो आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आपका प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है? मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात को लेकर। आज सुबह ही जब मैं आ रहा था तो मैंने अपने जो है आंकड़े दुरुस्त किए, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे 15 इलेक्टेड सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स में से मात्र एक महिला है। ये बात पीड़ा देती है। मैं अपने रीजनल काउंसिल की बात करूं, 12 जो है इलेक्टेड जो है रीजनल काउंसिल मेंबर में से मात्र एक महिला है। तो आप जब वोट देने जाते हैं तो आप इन बातों का क्यों नहीं ध्यान रखते? आपका जो है, एक बार मैं बहन मायावती की विचारधाराओं से इत्तेफाक नहीं रखता,
पॉलिटिकली जो है मैं थोड़ा सा दूसरी विचारधारा का आदमी हूँ, लेकिन मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। अगर आप प्रोफेशन में 42% हैं तो आपकी भागीदारी भी 42% होनी चाहिए काउंसिल में। आपको इस बात पर विचार करना है। मैं औपचारिक रूप से आरक्षण की मांग नहीं कर रहा प्रेसिडेंट साहब, मैं औपचारिक रूप से आरक्षण की मांग नहीं कर रहा। मुझे पता है कि आप बड़े क्रांतिकारी जो है अध्यक्ष हैं इंस्टीट्यूट के, आप इन सारे विषयों पर आपका जो है आपकी निगाह खुद ही जाने वाली है, मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन मैं आप सबकी आवाज जो है बनकर आज इस बात की बात उठा रहा हूं कि अगला इलेक्शन 2018 दिसंबर में आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि चाहे वो रीजनल काउंसिल हो, चाहे वो चैप्टर हो और चाहे वो सेंट्रल काउंसिल हो, आपकी उपस्थिति बहुत दमदार रहने वाली है। रहेगी नहीं रहेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे आपकी परेशानियों का भी अंदाजा है। अभी मैडम मोनिका कोहली ने मेरे से कुछ दिनों पहले चर्चा करी कि कुछ हमारी ऐसी भी जो है फीमेल सीएस कंपनी सेक्रेटरीज हैं जिन्होंने थोड़े समय के लिए करियर से ब्रेक ले लिया, उनकी शादी हो गई या कुछ और प्रायोरिटीज़ थी, अब वो वापस आना चाहती हैं करियर में। तो उनके लिए इंस्टीट्यूट क्या करेगा, ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो हमने तय किया कि जिनका 3 साल से अधिक का ब्रेक रहा है या जो भी मतलब वो कालखंड हम एक बार बैठ के डिसाइड कर लेंगे, वो ब्रेक रहा है, उनके लिए हम NIRC में, मैं आज इसकी औपचारिक घोषणा कर रहा हूँ, उनके लिए हम NIRC में एक क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं ताकि हम उनको कंपनीज एक्ट 2013 और कॉरपोरेट लॉ से रिलेटेड जितने भी पहलू हैं, ट्रांजैक्शनल एस्पेक्ट, हम उनके लिए क्रैश कोर्स के माध्यम से उनको गाइड करेंगे, उनको सेंसिटाइज करेंगे। और एक बार जब इन सारे पहलुओं पर उनकी तैयारी हो जाए तो उसके बाद उनकी प्लेसमेंट भी हो, हम इस पे प्रयास करने वाले हैं। मोनिका मैडम, आपसे आग्रह है कि इस चीज़ को आप आगे बढ़ाएं। जब आप बहुत सारा डिफरेंट रोल प्ले करती हैं घर में, परिवार में, ऑफिस में, तो हमको आपकी परेशानियों का अंदाज़ा है। तो मैं अपनी बात इस बात से समाप्त करूंगा और साथ में आपकी क्षमताओं का भी अंदाजा है कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जब पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। प्रतिकूल धाराओं में भी अगर बढ़ना कोई किसी से सीखे तो उसका नाम नारी है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आपको इतना सशक्त बनना है, आपको इतना काबिल बनना है कि आपको अपने फैसले खुद लेने हैं, आपको समाज का नेतृत्व करना है, आपको इंस्टीट्यूट का नेतृत्व करना है। मैं इन्हीं बातों के साथ एक बार पुनः अपने अध्यक्ष और सभी जो है सम्मानित अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आज का यह आयोजन बड़ा सफल रहने वाला है और इसमें बहुत सार्थक चर्चा होगी और बहुत सारे मुद्दों के जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Chairman, for inspiring us. Your inspiring words really means a lot to us. Thank you. Now, I request Harpreet Raman Bahel from Institute of Company Secretaries of India to share some thoughts, and she being one of the great resource, without her we could not, organize this program. So she will share the thoughts like how this whole program was evolved in this way that the success stories of the female company secretaries could be presented in front of you. Namaste everyone. A very happy International Women's Day. This is Dr. Harpreet Raman Bahel. I'm from the Office of the President and I have the privilege and honor to work under direct supervision of President Sir and to help him out. And it's a privilege that he conceives many innovative idea, many creative idea, and then we as a team are there to take up those ideas. The theme of this seminar is CS Women Empowered and Empowering. Can we once again, recite this theme? Will you come up with me? CS Women Empowered and Empowering? CS Women Empowered and Empowering. Very good. So have you come across on the website about the success stories invitation from the women members? How many of you? Success stories of women members were invited and many of you have started sharing their success stories also.
So it happened like that our president doesn't believe in celebrating Women's Day once in a day, that is once in a year, that is 8th of March every year. But he thinks like that it has to happen every day in the year. And while discussing, as we are working in the institute for 8 hours and 30 minutes daily, and all of us have a family also, and there also after office, the responsibility begins, and then we sleep, and then when we wake up in the morning at 5 o'clock or 5:30 maximum, the responsibility begins again. And when we have to rush up home, we have to tell him that, sir, now we have to leave, because the duty at home is beginning. So this is the story. And you know how he recognizes that. Sorry, sir, without your permission, I am sharing. One day he shared, like, I said, sir, I have to rush home now, बाकी सारा काम घर जाके कर लूँगी. And he said, Harpreet, wait a minute. You know, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग सुबह 10 बजे इंस्टीट्यूट आके शाम को 8 बजे जाके बेड पे एकदम से, like, there is no energy left. But you people, I salute to you, that you people start from 5 in the morning and then till 11 you people work for the office, for the family restlessly. And then I heard a shloka from him. Sir, I am telling that shloka so that everybody can know about your thinking. Ahalya Draupadi Kunti Tara Mandodri Tatha Panchkanya Samarne Nityam Mahapataka Nasanam. That is, अगर कोई अहल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी, अगर इनकी एक बार सुबह उठ के अगर इनको याद भी कर ले, ये इतने अच्छे रोल मॉडल्स रहे हैं अपनी लाइफ में कि इनको स्मरण करने मात्र सारे पाप किसी इंसान के मिट जाते हैं. बट द क्वेश्चन वाज दैट these women from ancient India, they were the role models. Do we have role models today also? So this is how he said कि हरप्रीत ऐसा करते हैं, अपने इंस्टीट्यूट से सक्सेस स्टोरीज़ की एक मेल करते हैं कि सब लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करना चाहें तो वो हम तक भेज दें. हमने एक बल्क मेल भेजी. इमीडिएटली विद इन 15 मिनट्स ऑफ दैट बल्क मेल मेरे को मेल्स आनी शुरू हुई. एंड वॉल्यूम ऑफ मेल्स इतना था that I had to call up IT team, if IT team remembers, कि हमारे बल्क मेल बॉक्स का साइज़ बढ़ा दीजिए. And then the stories are, last night also I checked my mailbox, stories are still coming in. We read all the stories, all those inspirational stories. उनको पढ़ के कहीं भी ये समझ नहीं आया कि क्या हमें आज भी रिजर्वेशन चाहिए, बिकॉज इतने केपेबल CS मेंबर्स हमारे पास थे. तो इन द मीन टाइम CS का इशू चार्टर्ड सेक्रेटरी लॉन्च होना था. तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया, दो द इशू वॉज on insolvency, but we decided that we are going to dedicate this issue to all our women members. And then top 10 women members, some of which are not able to make up today because they are on some foreign travels, and I would be revealing 2 such names. You would not imagine कि ये लोग CS members हैं और इतने top position पे हैं. Sir had a dream, CS to CEO. अगर आप लोग CS हो तो आप लोग CEO क्यों नहीं बन सकते हो? इन द मीन टाइम सर ने गाइडेंस दी कि हरप्रीत अगर CS है तो CS CEO क्यों नहीं हो सकता. तो हम लोगों ने सर्च करना शुरू किया कि क्या हमारे कोई CS CEO लेवल की पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं. कैन यू बिलीव, कैन एनीवन नेम आर वुमेन CS who has reached to the level of CEO? Any one of you? After hearing their names, you would not be asking for any reservations. No one of us is knowing that. Therefore we had started कि हमें आप लोगों को यहाँ पे लाके through this live webcast we have to tell to the whole world that yes, CS has CEO, and that too women CEO. And those precious gems, we have sorted out 10 gems, and 3 of us are able to make it up here. I would like to introduce Madam Monica Jaggia. Ma'am, you would be sharing the success story yourself, therefore, and just taking the names. Madam Saroj Hirawat, she has come up all the way from Jaipur. Madam Tasneem Sharif, she is a gold medalist. She has been awarded Nelson Mandela Gold Medal recently on 4th March. And she has come all the way from Hyderabad. Please welcome them once again. Now you think so that the
thinking process of our president is like that, empowered and empowering. You are already empowered. And then you are supposed to empower not hundreds, not thousands, but millions. So that is why the theme decided by President Sir is CS Women Empowered and Empowering. I would like to share the video, my IT team, share the video of Madam Preeti Malhotra, who is our first woman president of the institute. She was supposed to come, but due to some assignments, she is not able to come. But I was very happy in the morning when I opened my WhatsApp at 4 o'clock today.